Hello students, how are you all? I hope you all are good. Student, today we will do a worksheet which are based on your chapter number 5, does it look the same? Okay, so your chapter number 5 is does it look the same? So today we will do one worksheet which are based on your chapter, does it look the same? So students, before starting this video, it's compulsory to all of you, please just watch your chapter videos, okay, videos which are related to your chapter, okay, you have to watch this video, otherwise you are not able to understand this worksheet, clear? So before starting this video, please just watch your chapter videos also, okay. Now let's start from the question number 1, and your question number 1 is draw the other half of each symmetrical shape. So as you know that in symmetrical object, when you draw a symmetrical line, okay, so both part looks the same. आपके जो symmetrical object होते हैं, जब आप उसको line of symmetry से two equal parts में divide करते हैं, so आपके दोनों part जो होते हैं वो क्या होते हैं, exactly same दिखते हैं, clear? So if that is your line of symmetry, अगर ये क्या है आपकी line of symmetry है, this one, okay, that is your line of symmetry and this is your one part. So how your another part looks, आपका जो दूसरा part है वो कैसा दिखेगा, it looks like that, okay. आपको क्या करना है, सेम यही फिगर जो है वो बना देना है यहाँ पे, ओके, बट वो कैसा होना चाहिए, वो मिरर हाफ होना चाहिए, क्लियर? ऐसे नहीं कि आपने इसको ऐसे बना दिया लाइक दैट, ओके, नो, आपको क्या करना है, इसका सिमेट्रिकल शेप बनाना है, और वो ऐसा होना चाहिए कि आप इसको फोल्ड करें इस लाइन के अलॉन्ग, ओके, इस लाइन के अलॉन्ग अगर आप इसको फोल्ड करें तो एक दूसरे को एग्जैक्टली क्या करें, ओवरलैप करें, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट शेप, दैट इज योर शेप नंबर 2. सो हाउ इट्स लुक्स व्हेन यू कंप्लीट द ऑब्जेक्ट, इट्स लुक्स लाइक दैट, clear? And students, be careful, okay, when you are drawing any line, just use your scale and pencil, okay. Now next is your third figure. So here we have two curved lines, okay, so you have to draw similar curved lines like that, okay, so that's your symmetrical object. Fourth one is, it's like that, okay. So with the help of the scale, you have to draw it. Next one is here fifth shape, okay, and it's a petal shape or flower shape or heart shape also. Draw it like that, okay, like that, clear? Now it's your sixth and last shape. So basically it's a circle, okay. So you have to draw it like that. आपकी इस लाइन से इस कर्व की जितनी डिस्टेंस होगी, ये भी उतनी ही होनी चाहिए, क्लियर? सो फॉर इट यू कैन यूज योर ज्योमेट्रिकल बॉक्स ऑल्सो, ओके, योर कंपास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज द फिगर हैव. इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओके. सो जस्ट काउंट वन बाय वन. वन लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 line of symmetry, okay, 3 line of symmetry, 4th line of symmetry and 5th line of symmetry, and that is your 6th line of symmetry. So here you have total 6 line of symmetry, okay. So what you have to do, first just draw this figure in your notebook and then write line of symmetry equals to 6. Here we have total 6 line of symmetry. Now next question is हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री डू दिस फिगर्स हैव. इन फिगर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, आपको वो क्या, आपको वो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है, ओके. सो इन दिस फिगर वी हैव 1 2 3 and 4. टोटल वी हैव 4 लाइन ऑफ सिमेट्रीज, ओके. इन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग अगर आप इस शेप को डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी. नेक्स्ट इज सेकेंड फिगर. सो हेयर यू हैव 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके. नाउ फोर्थ, फिफ्थ
6 line of symmetry you have. Okay, so in this figure you have total 6 line of symmetry. Next question is, so it's a pentagon, so here you have 1 line of symmetry, 2 line of symmetry, that is your first line of symmetry, it's your second line of symmetry, and here you have third line of symmetry, fourth line of symmetry, and here is your fifth line of symmetry. Okay, total we have 5 line of symmetries. Okay, आपको क्या करना है, हर वर्टिक्स के अलॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन, आपको क्या करना है, हर वर्टिक्स, हियर यू हैव 1 2 3 4 5 वर्टिक्स, आपको हर वर्टिक्स के अलॉन्ग एक स्ट्रेट लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, क्लियर, जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, लाइक दैट. Okay, so here you have 5 line of symmetries. Next is question number 4. So in this figure you have 1 2 3 4 5 lines. It's a pentagon, but as you can see here all sides are different. सारी साइड जो है वो साइज में डिफरेंट है. ओके, सो यहाँ पर आपकी क्या होगी, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी. आप वीडियो को पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं. क्लियर, अगर हम इसको ऐसे बनाते हैं देन इट्स नॉट पॉसिबल. अगर हम इनको वर्टिसेस के अलॉन्ग बनाते हैं देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो हियर वी हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्रीज. Next is it's a diamond shape. Okay, this one, fifth one. So here you have 1 2, okay, 2 3 4, total 4 line of symmetries. So your answer is 4. Okay, now come to the next one, and that's your 6th question, and in this triangle you have only 1 line of symmetry. Okay, it's the isosceles triangle, so here you have only 1 line of symmetry. Answer is 1 line of symmetry. Now next question is, draw line of symmetry in those alphabet that are symmetrical. आपको इनमें से क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट क्या है सिमेट्रिकल है, आपको उनमें क्या करनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. एंड स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज. ओके, सो आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली हर एंगल से देखेंगे क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है. सो इन बी दैट इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, बट this one, that is your line of symmetry. In J there is no line of symmetry. F, here also no line of symmetry. I, here you have 2 types of line of symmetry. Okay, 1 and 2. So here you have 2 types of line of symmetry, vertical as well as horizontal also. Next is R. R, इसमें भी कोई भी line of symmetry नहीं है. Okay, now W, so here in W that is your line of symmetry. Okay, आपका ये portion इस portion के exactly similar है. Next is Z. Z में भी आपकी कोई भी line of symmetry नहीं है. E, E here. E में आपकी क्या है, line of symmetry कुछ ऐसी होगी. Next is X. So in X also you have vertical and horizontal both types of line of symmetry. Okay, X में आपकी दोनों line of symmetry है. L में आपकी कोई भी line of symmetry नहीं है. So students, one by one just pause your video and do it in your notebook. Next is question number 5, and your question is, state whether the following figure have been correctly divided into mirror halves or not. What has been done for you? आपको क्या चेक करना है कि इनको लाइन ऑफ सिमेट्री अलॉन्ग इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्या ये इक्वल पार्ट्स जो हैं आपस में सिमेट्रिकल हैं या नहीं हैं. ओके, सो आपके लिए एक आपका यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है. ओके, सो दैट इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री. अपर पार्ट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द लोअर पार्ट. आप जब इसको इस लाइन के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो ये एक दूसरे को एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे. सो हियर इज यस. नाउ यू हैव डब्ल्यू. ओके, एंड दैट्स योर लाइन ऑफ सिमेट्री. अब आप जब इस लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग कोई मिरर रखेंगे तो एग्जैक्टली क्या होगी, आपके मिरर में यही फिगर दिखेगा. सो हेयर ऑल्सो द आंसर इज यस. नाउ इन थर्ड फिगर दैट इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, बट दिस पोर्शन इज very small as compared to this portion. So here the answer is no. यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है बिकॉज इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है. नेक्स्ट इज Z. Z भी आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री
नहीं होगा, ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मिरर रख के देखते हैं तो आपको जो शेप है ये आपको डिफरेंट है इस शेप से। ओके, सो हियर इज आंसर नो। नेक्स्ट फिगर इज देयर इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। सो व्हेन यू पुट अ मिरर हियर, सो आपको क्या है, ये जो इमेज है ये इसके सेम तो है, बट यहाँ पर जो है एक सर्कल का फ़र्क है। ओके, अगर ये आपका मिरर ऑब्जेक्ट है सो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट में ये सर्कल यहाँ होना चाहिए था। क्लियर, तभी तो ये मिरर में इसका तभी तो ये मिरर में जैसे इसके सामने दिखते हैं। क्लियर, बट आपका सर्कल कहाँ है, यहाँ है। सो हियर द आंसर इज नो। ओके, आप इसको मिरर पुट करके भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हियर इज योर हेक्सागन, 1 2 3 4 5 6 साइड। सो ये आपका क्या हेक्सागन है, इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब आप यहाँ पे मिरर रख के देखेंगे तो एग्जैक्टली इसके सिमिलर है। क्लियर, सो हियर आंसर इज यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, which of the following will look the same on turning half turn? Write yes or no, one has been done for you. Now students, अब आपको क्या चेक करना है कि हाफ टर्न के बाद, हाफ टर्न यू नो दैट ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ टर्न, 180 डिग्री का जो टर्न होता है दैट इज योर हाफ टर्न, एंड ये आपकी क्या है चैप्टर वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ओके, सो आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है हाफ टर्न के बाद एग्जैक्टली सिमिलर लगेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन को करना है जस्ट उल्टा। ओके, मोबाइल की स्क्रीन को 180 डिग्री रोटेट करने के बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट सिमिलरली वैसा ही दिखता है, इट मीन्स ये क्या है, आपके हाफ टर्न शो कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट इज ऑलरेडी डन। नाउ इन अनदर इमेज यू हैव सम पेटल शेप्स। क्लियर, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट टर्न योर मोबाइल स्क्रीन एंड आपको क्या ऑब्जर्व, एंड यू ऑब्जर्व दैट इट हैज़ 1 हाफ टर्न। ओके, इसमें क्या है, 1 हाफ टर्न है। सो हियर द आंसर इज यस। नेक्स्ट इज अ पेंटागन, और जब आप इसको टर्न करते हैं तो ये हो जाता है कुछ ऐसा। ओके, सो हियर द आंसर इज नो, इसमें हाफ टर्न नहीं है। नेक्स्ट इज इट्स अ बेसिकली सर्कुलर शेप, इनसाइड द सर्कल यू हैव 1 प्लस साइन, सो व्हेन यू टर्न इट half turn 180 degree turn, it looks exactly similar. So here the answer is yes. Next you have heart shape, जब आप इसको 180 डिग्री टर्न करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी। Clear? So here the answer is no. Fourth one is it's a plus kind of sign, okay, like that. So when you turn it, अपनी स्क्रीन को टर्न करके देखिए ये exactly क्या है, similar है। So here the answer is yes. Clear? So first one is yes, another is no, that is yes, no and yes. Just pause your video and write the answers in your notebook. So students, अगर आप वर्कशीट के प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं that is good, but if you are not able to do that, so you have to draw in your notebook. Next and the last one is कंटिन्यू द पैटर्न बाय मेकिंग 1/4 टर्न क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, एक पैटर्न जो है वो क्या है, रिपीट हो रहा है। फर्स्ट ये क्या है, आपका 90 डिग्री टर्न हुआ तो ये ऐसा हो गया, देन ये जब 180 डिग्री टर्न हुआ तो ये ऐसा हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको 1/4 टर्न करना है, इट मीन्स इसको आपको 90 डिग्री और टर्न करना है। ओके, हर रोटेशन में क्या हो रहा है, 90 डिग्री टर्न हो रहा है, 90 डिग्री इज 1/4 टर्न। ओके, तो आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप पे भी इसको 1/4 टर्न करके बताना है कि अब ये फिगर कैसा दिखेगा। क्लियर, सो फर्स्ट फिगर में आपकी जो ये फ्लावर है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर, नेक्स्ट में वो क्या है, अलाइन हो गया है, नेक्स्ट में वो कुछ ऐसा है, एंड थर्ड फिगर में वो नीचे है। क्लियर, तो फोर्थ फिगर में क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, तो अब आपका जो ये फिगर है इसके फोर्थ स्टेप में 1/2 टर्न के बाद ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। फर्स्ट आपकी डायमंड शेप, ओके, देन आपका फ्लावर कुछ ऐसा दिखेगा। क्लियर, तो पहले आपको ये 3 पैटर्न बनाने हैं और फोर्थ स्टेप में आपको ये ड्रॉ करना है। नाउ इन सेकंड फिगर फर्स्ट यू हैव 1 डायमंड शेप, ओके, फर्स्ट यू हैव 1 डायमंड शेप, हार्ट शेप, फ्लावर शेप एंड 1 पेटल शेप। क्लियर, नाउ आपकी जो डायमंड शेप है वो हो गई है यहाँ शिफ्ट, और आपका ये पेटल शेप आ गया है डायमंड शेप की जगह, हार्ट आपका फ्लावर की जगह आ गया है और फ्लावर आपका पेटल शेप की जगह आ गया है। So as you can see that in this figure all the objects
चेंज इट्स पोजिशन, सारे ऑब्जेक्ट्स ने क्या कर लिया, अपनी पोजिशन क्या कर ली है, शिफ्ट कर ली है। क्लियर। सो फर्स्ट आपका डायमंड शेप यहाँ था, देन वो आया सेकेंड स्टेप में हियर, देन वो मूव हुआ थर्ड ब्लॉक पे हियर, अब वो कहाँ आएगा, फोर्थ वन में। क्लियर। सो आफ्टर 1/4 टर्न इट लुक्स लाइक दैट। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ वन सर्कल डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट। नाउ आपकी जो डायमंड शेप यहाँ है तो वो आप कहाँ आएगी, यहाँ पे। सो हेयर इज योर डायमंड शेप। अब जब यहाँ आपकी डायमंड शेप आ गई है तो आपकी हार्ट शेप यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। सो हेयर इज योर हार्ट शेप। देन आपका फ्लावर यहाँ शिफ्ट होगा। क्लियर, लाइक दैट। एंड जो आपकी पेटल शेप है वो आ जाएगी डायमंड शेप की जगह, लाइक दैट। ओके, सो दैट्स योर फोर्थ फिगर। क्लियर। So just pause your video and draw it in your notebook. Now next one is it's M. Okay, जब ये 90 डिग्री रोटेट हुआ तो ये हो गया ऐसा। देन अगर अब फिर से ये 90 डिग्री रोटेट हुआ तो ये W का W शेप के जैसा हो गया। देन अगर ये फिर से 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये कैसा होगा, लाइक दैट। क्लियर। सो दैट्स योर फोर्थ पैटर्न। Now next is here you have one circle, okay, and here you have one arrow which indicated in north direction, then it shift to east direction, then south। तो अब ये कहाँ लोकेट करेगा, वेस्ट की तरफ। ओके, सो अब इसकी पोजीशन होगी वेस्ट की साइड, लाइक दैट। क्लियर। So students, one by one just pause your video and write the answers in your notebook. But before doing your notebook work, first you have to understand this worksheet. आपको क्या करना है, वीडियो की हेल्प से वर्कशीट को समझना है। जब आपको वर्कशीट अच्छे से क्लियर हो जाती है देन आपको अपनी नोटबुक में वर्क करना है। ओके, एंड अगर आपको वीडियो की हेल्प से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ पा रहा है आप उसको कमेंट सेक्शन में करेंगे कमेंट। ओके, so students, one by one just pause your video, do it in your notebook. If you have any confusion, comment me in the comment section. If you have any feedback, then also you can comment me in the comment section. And if you like this video, please like, subscribe and share. Okay, so students, just do it in your notebook with neat and clean handwriting. Thanks for watching this video. Thank you so much. Have a nice day. Take care.